Sahil and my registration number is 17DE23. Welcome to the second lecture of DSP. In the first lecture, we learned about DSP and importance of DSP and its application. In this lecture, we will learn about the signal system and basic operation on signal. So what is signal? Signal is physical quantity that change with respect to some independent variable, that is time and space. Another definition of signal is a signal is a description of how one parameter varies when with another parameter. For example, voltage varies with time in a circuit and brightness of image is varied with distance. As distance increases, brightness decreases. Now system process signal to create other signal. Another definition of system is a system is any process that produces output signal in the response of input signal, or we can say algorithm, techniques or process to produce create another signal. Let's say this is the x of n is the input of a system. It gives some output, that is y of n. Types of system: discrete and continuous. Discrete give discrete output, continuous system give continuous output. According to DSP, system are filters, and for example y of n is the output of a system. This is the system, and x n minus k, it is the input of a system. Now basic operation on signal. Let's start with inverse. I will explain you all of these operations through example. Let's take a system y of n is equal to x of minus n. Minus sign indicate it is the inverse of a system. X of n is minus 1, 0, 1, 1, 1, 2, and this is a 0th point. So if we want to find the inverse of x of n, what we say simply do is to flip the values around 0. That is, these values come before and they come after. Simply this is output of x of n, that is y of n. Or we can also find it by putting the values of n, that is y of minus 2 is equal to x of 2. X of 2 in this figure is 1. So y of minus 2 is equal to 1. Another basic operation on signal, that is shift. Signal move backward or forward. For example, y of n is equal to x of n plus k. Plus k, it is the advanced system. और in simply words, जैसे कि अगर हम कोई भी काम जो कि हम 4 बजे करना चाह रहे हैं और हम वो काम पहले ही 12 बजे कर लें, तो वो हम पहले काम करें, तो ये एडवांस सिस्टम है. और जो काम हमें 4 बजे करना था, अगर हम रात के 8 बजे करें तो वो हम बाद में करें, तो वो डिले फैक्टर कहलाएगा. I will explain you through example. Advanced system y of n is equal to x n plus 2. In the last example मैंने इसको +2 का शिफ्ट दे दिया. जो चीज़ हमारे पास 0 पे थी, अब मैं उसको -2 पे ले आई हूँ. मैं 2 पॉइंट्स पीछे ले आई हूँ. मैं 2 दफ़ा उसको पहले देख रही हूँ. इसका हम बाकी जो सारी वैल्यूज हैं एज इट इज़ आ जाएंगी. एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड इट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n. अबव फिगर इज द शिफ्टेड वर्जन ऑफ x of n plus 2. डिले सिस्टम, जैसे हमने एडवांस सिस्टम देखा है. एडवांस सिस्टम में हम वो चीज़ 0 से पहले देखे थे, मतलब हम जो चीज़ हमें 0 पे देखनी थी, अब वो हम -2 पे देख रहे थे. अब यहाँ पर आगे x n minus 2, जो चीज़ हमें 0 पे देखनी थी, अब वो हम 2 पॉइंट्स बाद देख रहे हैं. जो वैल्यू 0 पे आनी थी, अब उसको हमने +2 में शिफ्ट कर दिया और बाकी सारे पॉइंट एज इट इज़ आ जाएंगे. दिस आर डिले वर्जन ऑफ x of n, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड इट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n. And another operation on signal is scaling. This is also called index scaling. It can also divide into two, downsampling and upsampling. If the number is multiplied, this is called downsampling. In the last example, I will multiply n by 2. That is, जो भी हमारे पास नंबर से यहाँ पर उन सब को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद जो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ रहा था उन पॉइंट्स का आ जाएगा. बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n, वी कैन ऑल्सो फाइंड y ऑफ n. जिस तरह हमारे पास y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ 2n है, तो मैंने n की वैल्यू -2 पुट की, तो x की वैल्यू -4 होगी. x की वैल्यू -4 ग्राफ में देखी जाए, जो कि हमारे पास इनपुट थी उसमें 0, तो y ऑफ -2 से हमारे पास 0 आ गया. इस तरह हम अगर n की वैल्यू -1 पुट करें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2.
और x ऑफ -2 जो ग्राफ में इनपुट में वो -1, तो y ऑफ -1 की वैल्यू एम्पलीट्यूड उसका -1 आ जाएगा। इसमें बाकी वैल्यूज हम निकालेंगे। इसका एक हमारे पास डिसएडवांटेज है कि इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है, क्योंकि फंक्शन क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। इस फंक्शन को श्रिंकिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अपसैम्पलिंग। जब हम कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे n से, तो वो हमारे पास अपसैम्पलिंग लाएगी। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास x ऑफ n बना था, इधर n की वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास y की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे कि y ऑफ मैंने n की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू जो भी 0 पे ग्राफ पे थी इनपुट पे, वो आंसर आ जाएगा y ऑफ 0 का। अब मैंने n की वैल्यू 1 पुट की, y ऑफ 1 x ऑफ 1/2, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है वो डिस्क्रीट में है, अब यहाँ पर कॉन्टीन्यूस आ गया, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम एज 0 ग्राफ में पुट कर देंगे। मतलब कि y ऑफ 1 की जो भी वैल्यू अब ग्राफ में लिखी जाएगी वो 0 लिखी जाएगी। इसी तरह अब मैंने 2 पुट किया तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 आई है ग्राफ में जो भी है, तो वो y ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। मैंने n की वैल्यू 3 पुट की, y ऑफ 3 निकालना मैंने, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ रही है कॉन्टीन्यूस, क्योंकि हमारे पास इनपुट जो है वो डिस्क्रीट में है, तो इसको हम 0 कंसीडर करेंगे। y ऑफ 3 पे हम 0 आ जाएंगे। ये जब हम अपसैम्पलिंग कर रहे हैं तो इसका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो गया। प्रोसेसिंग टाइम क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो गए। अनदर एग्जाम्पल दैट इज़, इस एग्जाम्पल में हमारे पास तीनों फंक्शन, अभी जो मैंने आपको पीछे स्टेप बाय स्टेप तीनों ऑपरेशन अलग अलग बताए हैं, शिफ्टिंग, इन्वर्स एंड स्केलिंग। अब हमारे पास एग्जाम्पल है y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ -2n + 3। जो x ऑफ n है वो पीछे लास्ट एग्जाम्पल जो सबसे पहले मैंने इन्वर्स फंक्शन में लिख के दी थी वही वाली है। सबसे पहले अगर हमारे पास तीनों ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले सिस्टम में तीनों ऑपरेशन हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले राइट से चलेंगे, मतलब +3 की पहले उसको हम शिफ्ट देंगे, फिर हम उसको इन्वर्स करेंगे, देन उसकी हम स्केलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने z ऑफ n को इंडिकेट कर दिया कि जो भी हमारे पास इनपुट थी उसको +3 से मैंने शिफ्ट दे दिया। जो z ऑफ n का आंसर आएगा उसको मैंने फ्लिप कर दिया, उसको मैंने WN से बता दिया। उसके बाद WN को अगर मैं उसकी स्केलिंग कर दूँ 2 से, मतलब डाउन सैम्पलिंग कर दूँ, तो हमारे पास y ऑफ n जो कि हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने जो भी मेरे पास x ऑफ n गिवन था उसको मैंने +3 से शिफ्ट कर दिया, मतलब जो वैल्यू मुझे 0 पे देखनी थी अब वो मैं वैल्यू -3 पे देख रही हूँ, और ये वैल्यूज़ मैंने इंडिकेट भी कर दी। नेक्स्ट जो भी मेरे पास का ये आंसर आया z ऑफ n, इसको मैंने फ्लिप करना है, मतलब 0 के ये वाली वैल्यूज़ अब मेरी पॉजिटिव बन गई हैं और 0 की इस साइड वाली वैल्यूज़ मेरी नेगेटिव बन गई। बाकी ये वैल्यूज़ मैंने n से भी निकाल दी। इन द लास्ट मैंने अब इसकी अपसैम्पलिंग करनी थी। अपसैम्पलिंग का मतलब कि मैंने जो भी मेरे पास ओमेगा n आया था उसको मैंने हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मेरे पास वैल्यूज़ आई थी वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है। लेट्स से अब हमारे पास जैसा इनपुट थी वो एक्सपेंडेड फॉर्म में थी, जो हमारे पास आउटपुट आई है मेरा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद डाउन सैम्पलिंग, वो कंप्रेस हो गई है। इनपुट हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में थी, आउटपुट कंप्रेस आ गई है। तो अब मैं चाहती हूँ कि आउटपुट भी मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो उस फॉर्म के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने ऑपरेशन यहाँ 2n अप्लाई किया था, अब मैं दोबारा ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ n/2 ताकि मेरे पास ओरिजिनल इनपुट आ जाए। तो देखते हैं हमारे पास ओरिजिनल इनपुट आती है या नहीं आती। ओरिजिनल इनपुट नहीं आती, क्योंकि जब भी मैंने n अप्लाई किया n/2 तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ आ गया। ग्राफ आ गया इसमें अब हमारे पास अगर इनपुट में देखी जाए तो इनपुट में हमारे पास 4 पीक्स आती हैं, 2 पीक्स हैं सॉरी, ठीक है। और हमारे पास अगर मैं आउटपुट में देखूं तो आउटपुट में मेरे पास 4 पीक्स हैं, 1 2 3 4। तो इसमें कोई ना कोई एरर है। इस एरर को कितना एरर है, उस एरर को हमें निकालने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा ज़ीरो ऑर्डर होल्ड। ज़ीरो ऑर्डर होल्ड का हमारे पास फॉर्मूला ये है f ऑफ x प्लस h इक्वल टू f ऑफ x। इसमें हमारे पास जहाँ जहाँ इस ग्राफ में जो था ज़ीरो एम्पलीट्यूड आ रहा था, अब हम इसमें ज़ीरो नहीं पुट करेंगे। ज़ीरो ऑर्डर होल्ड में हम क्या करेंगे, इस ज़ीरो पॉइंट की जगह जो लास्ट वैल्यू का एम्पलीट्यूड था, मतलब इसका एम्पलीट्यूड 3 था, तो मैं इस 5 में भी जो एम्पलीट्यूड है वो मैं 3 पुट कर दूँगी। सी इन द ग्राफ मैंने 5 का एम्पलीट्यूड 0 नहीं पुट किया, मैंने 3 पुट कर दिया। इस तरह ऊपर वाले ग्राफ में देखा जाए तो 3 की वैल्यू में एम्पलीट्यूड 0 था, मैंने वो 3 के लिए 0 नहीं लिखा, मैंने उसकी लास्ट वाली वैल्यू का एम्पलीट्यूड 1 पुट कर दिया। इस तरह मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। इसमें क्या हो जाएगा, अब इसकी पीक्स 4 आ गई हैं, तो ये इक्वल हो गया, लेकिन इसमें एरर और ज़्यादा बढ़ गया। एरर बढ़ गए तो इसका हमें हमारे पास ये प्रोसेस भी नहीं चलेगा। हम इसके लिए एक और ऑर्डर चेक करेंगे जो कि है फर्स्ट ऑर्डर होल्ड। अच्छा, इसमें एरर कैसे हमारे पास इंक्रीज़ हो गया कि अगर हम इनपुट में x ऑफ n देखें -5 पे तो उसका एम्पलीट्यूड 1 था, और अगर हम इस ग्राफ में -5 में एम्पलीट्यूड देखें तो मेरे पास 3 आ गया। तो ये एरर आ गया, इसलिए हम ये वाला ज़ीरो ऑर्डर होल्ड भी यूज़ नहीं करते। अब आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर होल्ड। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड में हमारे पास फॉर्मूला इसका आ जाता है f ऑफ x प्लस h इक्वल टू f ऑफ x
प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एच, दिस इज द स्लोप, एच इज़ द स्टेप साइज। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट्स लेंगे, उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ट्रेपेजियम की फॉर्म कर देगी, और 2 पॉइंट के दरमियान हम स्लोप निकालेंगे। लेट्स से मैंने पहला पॉइंट लिया दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट के दरमियान मैंने स्लोप निकाली, जो कि आंसर आया मेरे पास -1। अच्छा, अब मुझे ये वाला जो 5 का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो 5 के एम्पलीट्यूड के मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव प्लस एच। एफ ऑफ एक्स जो इस पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड था मैंने ये पुट कर दिया, स्लोप मैंने निकाल लिया, एच जो इन दोनों का दरमियान का डिस्टेंस है स्टेप साइड डेट इज़ 1, तो मेरे पास 5 का एम्पलीट्यूड आ गया 2, जो कि मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लूँगी दिस एंड दिस, इन दोनों के दरमियान मैंने स्लोप निकाली, जो क्या है ये मेरे पास 0.5। मुझे अब -3 पे एम्पलीट्यूड चाहिए, तो मैं दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ एच। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है 1, उसकी स्लोप हमारे पास आ जाएगी 0.5 और एच स्टेप साइज आ जाएगा। पुट करने के बाद मतलब मेरे पास जो -3 पे वैल्यू है वो 0.5, इस तरह हम बाकी वैल्यू निकालेंगे, इससे हमारे पास एरर कम आएगा। और अगर हम चाहते हैं कि एरर इससे भी ज़्यादा कम है, तो उसके लिए हम एक कोई ऑर्डर यूज़ करते हैं, सेकंड ऑर्डर होल्ड, जैसे इटरेशन यूज़ करें। सिमिलरली ये पहले 0 ऑर्डर होल्ड, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड, सेकंड ऑर्डर, उसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसके लिए हमें 3 सैम्पल्स रिक्वायर्ड होते हैं और 2 डेरिवेटिव लेने पड़ते हैं, और 3 पॉइंट से हम कर्व ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड में हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, अब 3 पॉइंट आ गए, तो 3 पॉइंट से हमारे पास कर्व ड्रॉ होगी और हमारे पास ओरिजिनल इनपुट जनरेट हो जाएगी। नाउ कम टू द बेसिक सिग्नल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिक सिग्नल, दैट इज यूनिट इम्पल्स एंड यूनिट स्टेप। यूनिट इम्पल्स का ग्राफ हमारे पास आ गया, जो कि सिर्फ 0 पे 1, बाकी ऑल पॉइंट में वो 0 होते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, यूनिट स्टेप 0 एंड 0 से ग्रेटर सब पे 1, बाकी सब पे वो वैल्यूज 0 होती है। ये ग्राफ्स और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दोनों आएंगे। Relation between impulse and step function. Impulse is the derivative of unit step and ये मैंने आपको शो भी कर दिया कि डेरिवेटिव हम लें यूनिट स्टेप का, तो हमारे पास इम्पल्स आ जाएगी, और अगर इम्पल्स का हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास यूनिट स्टेप आ जाएगा। नाउ मेकिंग सिग्नल आउट ऑफ डेल्टा, लेट से हमारे पास कोई भी ये सिग्नल है, अब इसको हमने ऑब्टेन करना है, लेकिन डेल्टा से, मतलब कि इम्पल्स फंक्शन थे। इम्पल्स फंक्शन ग्राफ ऐसे होता है, अगर हम इसको पहले हम क्या कर दें, एडवांस सिस्टम, मतलब जो पॉइंट हमें 0 पे देखना था उसको हम 1 में देख लें, ठीक है। एक ग्राफ ये आ गया। नेक्स्ट क्या करें, जो कि हमारे पास 0 पे वैल्यू उसकी 1 आती थी, उसकी हमने क्या कर दिया, उसका एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया। यह एम्पलीट्यूड स्केलिंग है। जो पीछे हमने ऑपरेशन पढ़ा था वो हमारे पास इंडेक्स स्केलिंग थी, लेकिन इधर जो मैंने स्टेप किया वो मैंने एम्पलीट्यूड स्केलिंग का किया। नेक्स्ट उसमें मैंने डिले फैक्टर, जो कि 0 पे वैल्यू देखनी थी, अब मैं बाद में 1 पे देख रही हूँ, और नेक्स्ट उसको मैं जो मैं 0 पे वैल्यू देख रही हूँ वो मैं -2 पे देख रही हूँ, और उसका मैंने इन्वर्स भी कर दिया। एम्पलीट्यूड का मैंने इन्वर्स किया, इससे माइनस साइन यहाँ पर आया। 1 2 3 4 चारों ग्राफ्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास एक्स ऑफ एन आ जाता है। एक्स ऑफ एन हमारे पास क्या था, एक्स ऑफ के, सॉरी एक्स ऑफ के दिस था। देखिए फर्स्ट ग्राफ हमारे पास ये -1 पे दिस, 0 पे 2 ये लिखा हुआ है, और 1 पे हमारे पास 2 एंड 2 पे जो थी वो -2। इन चारों को कंबाइन करके हमारे पास एक्स ऑफ के आ जाता है। Now this is another is topic is common signal decomposition. The goal of this method is to replace a complicated problem with several easy one. If the decomposition does not simplify the situation in some way, then nothing has been gained. There are 2 main ways to decompose a signal, that is impulse decomposition and Fourier decomposition. In addition, several minor decomposition used, that is even odd decomposition, interlaced decomposition and step decomposition. Here is a description of even odd description डिकम्पोजिशन ओनली। इवन सिग्नल डिकम्पोजिशन, इवन सिग्नल का हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला आ जाएगा एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन डिवाइड बाई 2। जो भी हमारे पास सिग्नल एक्स ऑफ गिवन है उसमें एन की वैल्यूज पुट करें 0 1 2 3 4, उसके बाद इस फॉर्मूले पुट कर दें एक्स ऑफ माइनस एन, मतलब जो कि हमारे पास एक्स ऑफ एन सिग्नल गिवन है, इसको हम इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स करने के बाद उसमें एन की वैल्यूज पुट करें, जो जो यहाँ वैल्यूज आ रही है उसके एम्पलीट्यूड की यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, इन दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दें, तो हमारे पास इवन सिग्नल ऑब्टेन हो जाएगा। सिग्नल हैविंग इवन सिमेट्री एंड डेफिनेशन ऑफ इवन सिग्नल डिकम्पोजिशन इज एन सिग्नल पॉइंट इज सेड टू हैव इवन सिमेट्री, कि एन सिग्नल पॉइंट इवन सिमेट्री होगा कब, इवन इफ इट इज़ द माइनर मिरर इमेज अराउंड पॉइंट n बाई 2, मतलब कि जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ हैं वही 0 के राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ हो, तो वो उसका मिरर इमेज बन जाएगा और वो इवन सिग्नल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल डेट इज सैम्पल इज एक्स एन प्लस 2, मतलब जो कि 1 में वैल्यू मस्ट इक्वल टू -1, और जो +2 में वैल्यू वही वैल्यू हमारे पास -2 में आनी चाहिए। लेट्स से हमारे पास एक्स ऑफ एन ये सिग्नल गिवन है, एक्स ऑफ एन,
ठीक है। उसके बाद मैंने उसको फ्लिप, मतलब कि जो जीरो के इस साइड वैल्यूज़ थी उसको मैंने इधर लिख दी है, और जो जीरो के इस साइड वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, फ्लिप कर दिए, इन्वर्स कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैंने क्या करना था, एक्स ऑफ एन, मतलब जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, और एक्स ऑफ माइनस एन में इसकी वैल्यू क्या है, 2। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने एक्स ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, इधर एक्स ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, 1 + 1 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। तो वो मैं यहाँ पर प्लॉट करती हूँ, जीरो पे हमारे पास 2 आ गया, 1 पे हमारे पास 1 आ गया। सब बाकी सारी वैल्यूज़ में निकाल के इस ग्राफ में प्लॉट कर दो। ये इवन सिमेट्री है, मतलब जीरो के जो पॉइंट इधर इनका एम्पलीट्यूड है वही जीरो के इस साइड भी इनका एम्पलीट्यूड है। दिस इज कॉल्ड इवन सिग्नल डिकम्पोजिशन। नाउ लास्ट इज ऑड सिग्नल डिकम्पोजिशन। इसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा सिंपल इवन सिग्नल वाली फॉर्मूला, बस बीच में माइनस साइन है। ऑड सिग्नल having odd symmetry, odd signal occurs when the matching points have equal magnitude but one opposite in sign। जो हमारे पास +1 में वैल्यू थी, मतलब उसका एम्पलीट्यूड 1 था, तो जो वो हमारे पास -1 में उसका एम्पलीट्यूड -1 हो जाएगा। लेट्स एन एग्जांपल, जो हमारे पास पीछे इवन सिग्नल की डिकम्पोजिशन में जो सिग्नल गिवन है हमारे पास ये वाला एक्स ऑफ माइनस एन भी गिवन है। जो जीरो पे वैल्यू 2 उसको हम प्लस करेंगे, जो जीरो पे यहाँ पे वैल्यू 2, 2 - 2 करेंगे 0, तो एक्स ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 0, जो कि मैंने पुट कर दी। इस तरह एक्स ऑफ 1 सारी वैल्यूज़ पुट करके प्लॉट ये ग्राफ कर देंगे और डिकम्पोजिशन का। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।